Good morning, students. This video is for ninth class, and the supplementary reader is this chapter is from the book of Moment, and the first chapter we are going to discuss today, The Lost Child. As you know, this chapter is written by Mulk Rajanand. So, first of all, we must know about the author. He was an Indian writer in English, and his birth was in British India. Now it is in Pakistan. The place was Peshawar on 12th December. Note it down somewhere. Anytime, whenever you watch the video of any subject, you must have your notebook and pen in your hand to note down the main points. His birth date was 12th December 1905 in Peshawar, and his death was on 28th September 2004 in Pune, Maharashtra, in the hospital. Now we will know some qualities what he had. He was notable for his depiction of the lives of poorer castes. पुअर कास्ट जो हमारे सोसाइटी में होते थे, उनके लाइफ के लिए वो उन्होंने काम किया था. जो भी वर्क्स उन्होंने लिखे थे वो स्पेशली पुअरर कास्ट के लिए था, या हम उन लोगों को कहेंगे जो लोग एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आते थे. ओके. और A.K. रामानुजम, इन लोगों के साथ मिलकर के इन लोगों ने एक इंडियन राइटर का ग्रुप बनाया था. तब उन लोगों ने अपना अपना वर्क कंप्लीट कर रहे थे. ही इज़ मीन्स मुल्क राजानंद इज़ एडमायर्ड फॉर his novels and short stories, which acquired the status of classic of modern English literature. अभी का जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसमें क्लासिक उसको कह सकते हैं. इट वॉज सच अ स्टेटस which is very hard to gain, and those works are noted for their perspective insight into the lives of oppressed, or for their analysis of impoverishment, exploitation and misfortune. Some of the best works he has done as Untouchable. It was published in the year of 1935, and it was followed by another novel, that is Coolie, that was in 1936, and after that there was one more, Two Leaves and a Bud, that was in 1937. Okay. And he was awarded as Sahitya Academy Award in the year of 1971, and by the government of India he was also awarded by Padma Bhushan, that was in the year of 1968, and he got International Peace Prize in the area of literature, that is in the year of 1953. As I have told you, this story also reflects the status of poorer people in the remote countryside of India. Okay, and now we will start the chapter without wasting our time more on the author. In this chapter we will know the child's psychology in a sensitive way without shying away from its reality. Okay, so be careful, and we will now start the chapter. Before reading the chapter, we will read out here
A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited. Everyone is happy and excited due to when they used to visit fair, and wants the sweets and toys displayed there. मतलब फेयर में जो भी स्वीट्स और टॉयज़ डिस्प्लेड होते हैं वो सारे बच्चे को चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीद देता है. वाई? देन ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तब वही बच्चा और वही चीज़ को क्यों रिफ्यूज़ करता है जब उसे कोई और देता है, someone else. Let's see how the story goes. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys, you know, street को कहते हैं, आगे भी एक word है, emerged a galley, turning point है, clad humanity. Some walked, some rode on horses, some sat being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Brimming मतलब होता है इधर उधर भागना. ओके, बॉर्डर लाइन मतलब कभी इस तरफ जा रहा है कभी उस तरफ जा रहा है. तो ये सीन जो है ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि रास्ते का सीन है. फेस्टिवल, स्प्रिंग में फेस्टिवल जो होते हैं उस समय का टाइम है और एक बच्चा मेला देखने के लिए जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. वो बहुत ही खुश है, गलियों से होते हुए जा रहा है. कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बैलगाड़ी पे हैं, लकड़ी वाले गाड़ी पे हैं, एंड कुछ ये जो बच्चा है वो फादर के पैरों के बीच से एंड से कभी इस तरफ रास्ते के कभी उस तरफ होते हुए खूब हंसते हुए मज़े करते हुए ही वॉज गोइंग टू द फेयर. नाउ कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड मतलब होता है पीछे रुक जाना. ओके, बिहाइंड. फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. मतलब रास्ते में जो वो शॉप की दुकान देख रहा है वहाँ पे वो रुक जा रहा है. दैट्स वाई हिज पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल हिम. ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. मतलब उसके पैर उनके कॉल की आज्ञा को मानता है. मतलब जब भी इसके पेरेंट्स इसको कॉल देते हैं ही हरीडली गो देयर. हिज आइज़ still lingering means मतलब वो उसी चीज़ को देख रहा है बार बार. beyond the usual expected time मतलब जो टॉय उसको पसंद आ गया था, उसकी आंखों को भा गया था, उसी चीज़ को देखे जा रहा है. बट उसके पैर जो हैं अपने फादर या मदर के कॉल पे जा रहे हैं. ऑन द रिसेडिंग टॉयज़ एज ही केम वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ इसके पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं इसका. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. मतलब अपने हार्ट में जो इसको डिज़ायर होता है मीन्स इच्छा होता है कि हमें ये टॉय चाहिए. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. कोल्ड स्टेयर यहाँ पे कहा जाएगा मतलब इसके इमोशन को कंट्रोल नहीं हो रहा है. उसको कहा गया है कि इसके फादर जो है रिफ्यूज़ कर देंगे कि तुम्हें ये टॉयज़ नहीं खरीद देंगे या फिर स्वीट्स नहीं खरीद देंगे. ये जानता है बच्चा, फिर भी वो क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट. इट इज़ अ रिक्वेस्ट. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड in his familiar tyrant way. Tyrant क्रूएल कहेंगे हम लोग, ऑपरेसिव बिहेवियर को कहेंगे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you."
मतलब इसकी मदर जो है इसके ध्यान को भटकाना चाहती है, फिंगर दे करके कहती है होल्ड दिस एंड कम विद मी। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वो मस्टर्ड फील्ड को दिखा रही होती है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं खेतों से, तो वहाँ पे सरसों के खेत हैं और उसमें फ्लावर्स जो लगे हुए हैं येलो कलर के, उसको यहाँ पे राइटर ने कहा है मेल्टिंग गोल्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में गोल्ड मेल्ट हो चुका है वैसा दिख रहा था। A group of dragonflies were bustling, moving in an energetic way. Bustling का means है moving in an energetic way. About their gaudy, bright, flashy, violent कहेंगे हम लोग, purple wings intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the ear with his gaze. Gaze तो आप लोग जानते होंगे, staring, look steadily, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath. मतलब ये बच्चा जो है जब वो फील्ड की तरफ देखने लगता है तो वो बटरफ्लाई या फिर बी को देखने लगता है और उसके ब्राइटनेस के तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और वो उस तितली के पीछे भागने लगता है जिसके वो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग मतलब पंख जो फड़फड़ा रहा होता है उसको बड़े ही गौर से देख रहा होता है। और जब वो उसको पकड़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसकी माँ ने इसे कॉल किया है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, मतलब तभी ही इसकी मदर इसको कॉल कर देती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।